وفاقی حکومت نے 27ویں آئینی ترمیم کا مجوزہ مسودہ پیپلز پارٹی کے حوالے کر دیا۔ ARY نیوز مجوزہ ترمیم کی تفصیلات سامنے لے آیا۔ وفاقی حکومت نے مجوزہ آئینی ترمیم میں آرٹیکل 160 اور شق 3A میں ترمیم کی تجویز دی ہے۔ اس کے ساتھ تعلیم اور آبادی سبجیکٹ ٹو فیڈرل کرنے کے 18ویں ترمیم کے شیڈول 2 اور 3 میں ترمیم کی تجویز دی گئی ہے۔ آرٹیکل 213 میں چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی میں ترمیم کی تجویز بھی شامل ہے۔ وفاقی حکومت نے آرٹیکل 191A ختم کر کے نیا آرٹیکل شامل کرنے کی تجویز دی ہے۔ حکومت نئی قانون سازی میں آئینی عدالتوں کا قیام چاہتی ہے۔ ذرائع کے مطابق وفاقی حکومت آرٹیکل 160 کی شق 3A کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ اس کے ساتھ آرٹیکل 243 میں بھی ترمیم کرنا چاہتی ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس 5 نومبر کو طلب کرنے کا فیصلہ۔ پارلیمانی ذرائع کا کہنا ہے وزارت پارلیمانی امور نے اجلاس سے متعلق نئی سمری وزیر اعظم کو بھجوا دی۔ شیڈول کے مطابق قومی اسمبلی کا اجلاس 27 اکتوبر کو ہونا تھا۔ مالیاتی امور سے متعلق اہم آرڈیننس کی وجہ سے اجلاس ری شیڈول کیا گیا، لیکن اتفاق رائے نہ ہونے پر آرڈیننس جاری نہ ہو سکا۔ اب سینٹ کا اجلاس کل اور قومی اسمبلی کا بدھ کو بلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پارلیمانی سیشن طلب ہو جائیں تو آرڈیننس جاری نہیں ہو سکتا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پیپلز پارٹی سے 27ویں ترمیم کی حمایت کی درخواست کر دی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے ایکس پر ملاقات کی تفصیلات شیئر کر دی۔ لکھا، وزیر اعظم کی قیادت میں مسلم لیگ نون کا وفد صدر آصف علی زرداری اور مجھ سے ملنے آیا اور آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے پیپلز پارٹی کی حمایت مانگی۔ پیپلز پارٹی کے مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس صدر مملکت کی دوحہ سے واپسی پر جمعرات کو طلب کیا گیا ہے، جس میں آئینی ترمیم سے متعلق حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ ترمیم میں NFC ایوارڈ میں صوبائی حصے کے تحفظ کو ختم کرنے کی تجویز شامل، تعلیم اور آبادی منصوبہ بندی کے اختیارات واپس وفاق کو دینے اور الیکشن کمیشن کی تعیناتیوں پر ڈیڈ لاک ختم کرنے کے لیے بھی تجاویز شامل ہیں۔ تین ریٹنگ ایجنسیز نے ہمیں اپ گریڈ کیا ہے۔ سٹاف لیول ایگریمنٹ جو واشنگٹن میں اناؤنس ہوا، ہماری سمت درست ہے۔ چائنا ہے، US ہے، GCC کنٹریز ہیں، انہوں نے مدد کی ہے ان ٹرمز آف فنڈ، ان ٹرمز آف ایڈ۔ تو جو اسٹرکچرل ریفارمز ہیں دے آر گوئنگ ٹو پلے اے ویری امپورٹنٹ رول۔ ہماری معیشت کی سمت درست ہے۔ IMF کے ساتھ سٹاف لیول معاہدہ معاشی استحکام کی توثیق ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی دیگر وزراء اور چیئرمین FBR کے ساتھ پریس کانفرنس۔ کہا اخراجات بڑھا کر معاشی ترقی کی رفتار تیز نہیں کرنا چاہتے ہیں، معاشی ترقی کی شرح کو مستحکم انداز سے بڑھانا چاہتے ہیں۔ چیئرمین FBR راشد لنگڑیال کہتے ہیں 1700 ارب روپے کم انکم ٹیکس جمع ہو رہا ہے، جس میں بڑے شعبوں کا حصہ 1200 ارب روپے ہے۔ تمباکو پر ٹیکس میں چوری بہت زیادہ ہے۔ ریونیو شارٹ فال ضرور ہے، لیکن منی بجٹ نہیں لائیں گے۔ سوشل میڈیا پر دولت کی نمائش لیکن گوشوارہ جمع نہ کروانے والوں کی فہرستیں تیار۔ FBR نے سوشل میڈیا کے مانیٹرنگ ڈیٹا کے مطابق کارروائی شروع کر دی۔ FBR کے ذرائع کا کہنا ہے مہنگی گاڑیوں، کشتیوں، بنگلوں، فلیٹس، فارم ہاؤسز کی نمائش کرنے والوں کے خلاف گوشوارے جمع نہ کرانے پر کارروائی ہوگی۔ مہنگے کپڑوں، جیولری، گھڑیوں کی نمائش کرنے والوں کے خلاف بھی گوشوارے جمع نہ ہونے پر کارروائیوں کا امکان۔ شادی، قوالیوں، دیگر محافل میں نوٹ نچھاور کرنے والوں کے خلاف گوشوارے جمع نہ کرانے پر بھی کارروائی ہوگی۔ PIA اس وقت ٹاپ آف دا لسٹ ہے، سب کے ریڈار پر ہے۔ اس کے اندر پاکستان کے جو ٹاپ گروپس ہیں وہ ان میں سے بہت سارے لوگ انٹرسٹڈ ہیں۔ یہ ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ایئر اینڈ سے پہلے اس کو ہم پرائیویٹائز کریں۔ PIA کی نجکاری آخری مراحل میں ہے۔ آنے والے دنوں میں نجکاری میں تیزی آئے گی۔ بجلی کی تقسیم کار کمپنیز کی نجکاری میں اثاثے اور پینشن سمیت دیگر کئی ایشوز پر کام ہو رہا ہے۔ مشیر برائے نجکاری محمد علی کی نیوز کانفرنس۔ وزیر توانائی اویس لغاری نے کہا ایک سال میں گردشی قرضہ 700 ارب روپے کم کیا۔ بجلی کی تقسیم کار کمپنیز کا نقصان 193 ارب روپے کم کیا۔ نقصان پر چلنے 17 پیداواری یونٹس کی نیلامی سے 48 ارب روپے حاصل کیے۔
हुकूमत अब बिजली की खरीदारी से निकल रही है। रवा माली साल के तरक्याती फंड्स में 300 अरब रुपए की कटौती की तजवीज। प्लानिंग कमीशन के जराये का कहना है कटौती से पीएसडीपी साइज 1000 अरब रुपए से कम होकर 700 अरब रुपए तक महदूद हो जाएगा। रेवेन्यू आमदन कम होने के बायस और प्राइमरी बैलेंस का हदफ हासिल करने के लिए कटौती होगी। तरक्याती प्रोग्राम के साइज में कटौती के बायस अहम मंसूबों के लिए फंड्स की कटौती की जाएगी। इब्तदाई तौर पर रवा माली साल के लिए 1400 अरब रुपए का तरक्याती बजट मुख्तस किया गया है। कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात 28 दिसंबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी 13 से 17 नवंबर तक जमा होंगे। तरक्की का सफर ना रोका जाता तो हम दुनिया की 7वीं बड़ी मईशत होते। पोर्ट कासिम समेत तमाम बंदरगाहों को जदीद बना रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया के लिए समंदरी ट्रेड रूट साबित होगा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा पाकिस्तान का मोहल्ले बकू इस दुनिया में मुनफरिद बनाता है। पाकिस्तान वस्ती एशिया, जनूबी एशिया और मशरिक़ वस्ता के दरमियान तिजारती हब बन सकता है। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के लिए पुरकशिश मकाम है। तुर्की के शहर इस्तांबुल में गजा की सूरत हाल पर अरब इस्लामी वज़राए खारजा का इजलास आज होगा। मेज़बानी तुर्क वज़ीर खारजा करेंगे। 8 मुमालिक तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, UAE, इंडोनेशिया, उर्दन और मिस्र के वज़राए खारजा शरीक होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार इजलास में शिरकत के लिए तुर्की पहुंच गए। पाकिस्तान जंगबंदी मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद पर जोर देगा। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों खास तौर पर गजा से मुकम्मल इसराइली इनखला का मुतालबा किया जाएगा। फ़लस्तीनियों के लिए बिला रुकावट इंसानी इमदाद और गजा की तामीर नौ पर भी जोर दिया जाएगा। गजा पर इसराइली हमले जारी। इसराइली फौज अब मुआहदे पर दस्तखत के बाद से अब तक 194 मरतबा जंगबंदी की खिलाफ वर्जी कर चुकी। शजाया पर ताज़ा हमलों में एक और फलस्तीनी शहीद। कतरी वजीर आजम शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी का कहना है इसराइल और हमास जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियां कर रहे हैं। मिस्र और अमेरिका के साथ मिलकर जंगबंदी बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। आर्म फोर्स की तैनाती के लिए वाज़ेह मैंडेट की जरूरत है। फोर्स का किरदार ये हो कि इसराइल और फलस्तीन एक दूसरे के लिए खतरा ना बने। हमास की जानिब से 3 यरगमालियों की लाशें वापस करने पर खुशी हुई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं दुनिया भर में 8 जंगें रुकवाईं, शाम पर आयत पाबंदियां हटाई ताकि उन्हें अपनी बका का मौका मिले। मेरे दौरे सदारत में चीन ताइवान पर हमला नहीं करेगा। चीनी सदर ने बार बार यकीन दिलाया वो बहरान नहीं बढ़ाएंगे। छब्बीस नवंबर एहतजाज केस। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अलीमा खानम के छठी बार नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। समात 6 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। दौरान समात अदालत ने अलीमा खानम और वकला की अदम पेशी पर सख्त इजहार बरहमी किया। पुलिस ने गुज़श्ता समात पर जारी वारंट गिरफ्तारी की तामील की रिपोर्ट जमा करवा दी। जब नौ मुंतखब वज़ीर आला साहब को PM साहब की कॉल आई थी, सोहेल अफरीदी साहब ने उनसे डिमांड की थी कि मेरी मुलाकात अडियाला में करवाई जाए, तो उन्होंने कहा कि मैं पूछ कर बताता हूँ। एक वज़ीर आज़म के पास इतना इख्तियार नहीं है कि वो एक इलेक्टेड वज़ीर आला को अडियाला में अपने कायद से मुलाकात वो करवाए, तो उसके साथ हमने बैठ के क्या करना है, हम उनके साथ बैठेंगे कि जिनके पास इख्तियार हो। वज़ीर आज़म के पास इतना भी इख्तियार नहीं कि वो एक वज़ीर आला की जेल में मुलाकात करा सके, तो फिर इनके साथ बैठकर क्या करना है। हम उनसे बात करेंगे जिनके पास इख्तियारात हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन खुसूसी शफी जान कहते हैं सोहेल आफरीदी इन लोगों से हजम नहीं हो रहा। सूबाई हुकूमत के खिलाफ हर प्रोपेगेंडे का भरपूर जवाब देंगे। सूबे में अमन के लिए 35 अरकान पर मुश्तमिल पार्लिमानी सिक्योरिटी कमेटी कायम कर दी है। अवाम जल्द मुस्बत नताइज देखेंगे।
पीपल्स पार्टी का माइंडसेट कराची दुश्मनी पर मबनी है। ग्रीन लाइन मुकम्मल नहीं की, रेड लाइन का बेड़ा गर्क कर दिया। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान का कहना है पीपल्स पार्टी कब्जा सियासत कर रही है। एमकेएम हमेशा पीपल्स पार्टी का साथ देती है। एमकेएम और पीपल्स पार्टी नूरा कुश्ती कर रहे हैं। सूबाई हुकूमत और कब्जा में जितनी भी रुकावटें डालें हम काम करेंगे। जंगल का भी कानून होता है। ये जो ऑलरेडी टैक्स है जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, कोई तो उसका हिसाब किताब होना चाहिए, कोई तो जवाब होना चाहिए। कराची का ये हाल है जो मौजूदों से बदतर हो। अगर हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रही है वो शहरियों से लोगों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 10-10 हज़ार रुपए का चालान, मतलब ये कि ये कोई हद होती है। कराची का हाल मोइंजोदाड़ो से बदतर है और ई चालान के नाम पर शहरियों से 10-10 हज़ार रुपए लिए जा रहे हैं। सिर्फ सड़कें नहीं, लोगों के दिल भी टूट गए हैं। रहनुमा एमक्यूएम पाकिस्तान फारूक सत्तार कहते हैं शहरियों पर टैक्स लगाकर जहनी अजियत दी जा रही है। हुकूमत सिंध अपना काम नहीं करती, सब आवाम पर डालती है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का रद्द-ए-अमल, कहा चालान पर रोने वालों को तकलीफ चालान से नहीं कानून की अमलदारी से है। कराची का हुलिया बिगाड़ने वाले आज अपना माजी छुपाने के लिए झूठ का सहारा ले रहे हैं। इनके दौर के क्राइम रेट कारकर्दगी का जायजा लिया जाए तो मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात से मुलाकात, दाखिली सिक्योरिटी के इक़दाम के हवाले से ब्रीफ किया। चौधरी शुजात का सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। वज़ारत दाखिला के इंतजामात को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने शहदाए वतन को शानदार अल्फाज में खिराज अकीदत पेश किया। मोहसिन नकवी ने चौधरी शुजात से उनके बहनोई के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। बंदू में दहशतगर्दों का डीपीओ शुमाली वजीरिस्तान की गाड़ी पर हमला, फायरिंग से 5 पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस का कहना है डीपीओ वकार हमले में महफूज रहे। पेशावर यूनिवर्सिटी रोड पर सीटीडी थाने में धमाके पर तफसीली रिपोर्ट तैयार। सुबह 7:58 पर थाने के मालखाने में धमाका हुआ जिससे इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। हेड कांस्टेबल बिलाल शहीद और 3 अहलकार जख्मी हुए। मालखाने में बारूदी मवाद, ग्रेनेड्स और दीगर केस प्रॉपर्टी थी। 23 दस्ती बम, 7 ग्रेनेड लीवर, 2 किलो बारूद, 42 इलेक्ट्रिक, 10 नॉन इलेक्ट्रिक डेटोनेटर्स भी मौजूद थे। तकरीबन 60 राइफलें, 10 किलो हाई एक्सप्लोसिव भी रखे गए थे। कराची के मंगोपी रोड खवारी कॉलोनी से फितना खवारिज के 3 दहशतगर्द गिरफ्तार, जैदुल्ला उर्फ जैदू, नूरजादा और उस्मान शामिल। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुलजिमान खारजी अमीर शम्स अल क़य्यूम उर्फ जावेल उर्फ जाफरान के करीबी साथी हैं। भत्ताखोरी और जमीन पर कब्जों में भी मुलव्विस हैं। भारत की बैनुल-अक़वामी सतह पर एक और स्ट्रेटेजिक नाकामी, ताजिकिस्तान में 25 साल से कायम भारत का एयरबेस खाली करवा लिया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ये इंडिया का बैरून मुल्क वाहिद फौजी अड्डा था। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन के करीब होने के बायस ये मकाम भारत के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक अहमियत का हामिल समझा जाता था। भारत ने गुज़श्ता 20 साल में एयरबेस को बेहतर बनाने पर तकरीबन $10 करोड़ खर्च किए थे। मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात, भारत के बिजनेस टाइकून अनिल अंबानी ग्रुप के 35 करोड़ रुपए के असास से मुंजमद। भारतीय मीडिया के मुताबिक अनिल अंबानी के मुंबई, दिल्ली, चेन्नई में घर सील और जमीन के लेन देन पर पाबंदी आयद कर दी गई। अनिल अंबानी के ग्रुप के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात जारी है। अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जलजला, 20 अफराद जाँ बहक, 180 जख्मी। जलजले का मरकज कोहिंदू कश में था। रिक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 6.3 रिकॉर्ड की गई। गहराई 10 किलोमीटर थी। मैक्सिको के शहर हरमोसियो की सुपरमार्केट में खौफनाक आग, 23 अफराद जिंदा जल गए, दर्जनों झुलस कर जख्मी। मरने वालों में बच्चे और खवातीन भी शामिल। हुकाम ने बताया बरक़ी आलात में धमाके के बाद शोले भड़क उठे, ज्यादातर अफराद अंदर ही फंस गए। शदीद धुएं और जहरीली गैस के अखराज से तबाही हुई।